So when it comes to quantization, the total charge, the net charge on any body will be equal to integral multiple of basic charge, that is E, where E will be 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and it is going with the charge, magnitude of charge on electron or a proton. And the fourth one is conservation of electric charge. So when it comes to conservation, electric charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body, or in an isolated system, the total number of charge will always remain constant. Otherwise, we can say in universe, the total number of charge will remain constant. ये भी statement बन सकता है. I repeat, in universe, the total number of charge will remain constant. Now, when it comes to first and second property, that is, like charges, they repel each other. So ultimately, there will be force. Because of that, they are going to repel. And unlike charges, they are going to attract each other. Again, there will be force. Because of that, they are going to attract. So Coulomb, a scientist, he considered these two properties and he started doing experiment to find the expression for force between the two charges. So after doing many experiments, he got an expression, and he found that the expression is very similar to the Newton gravitational law, right? So you have discussed all these things in last lecture. So on the basis of that, he made a statement on the basis of that equation, and that statement is going to be called as Coulomb's law, right? So according to Coulomb's law, the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest is, first one, it is directly proportional to product of magnitude of two charges. Second one, it is inversely proportional to square of the distance between them. And third one, it acts along a straight line joining 2 point charges. And the fourth one is, of course, it depends on the medium where the charges are placed. ये हम लोग ने statement को discuss किया था. So today we'll derive the expression, right? So when it comes to the expression of Coulomb's law, what we will do? First हम लोग free space consider करेंगे. बच्चा free space एक तो air हो सकता है, नहीं तो vacuum हो सकता है. I repeat, first we will consider free space. तो ये air हो सकता है या vacuum हो सकता है. So you will consider two charges, right? So consider two point charges, that is Q1 and Q2, separated by a distance R, that is small r, in सर स्क्रीन ब्लर है. सर स्क्रीन ब्लर है. blur है? नो सर, No, sir. क्लियर है, क्लियर है. Clear है बच्चा, एकदम clear है. So I can see in the, another mobility is very clear. थोड़ा network का issue रहेगा आपका side में, देख लो. So consider 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance r in free space. मैं फिर से बता रहा हूं कि ये फ्री स्पेस एक तो एयर हो सकता है, नहीं तो वैक्यूम हो सकता है, राइट? तो हम लोग दो चार्जेस को कंसीडर करेंगे. So you're going to have two charges here. So this will be the first charge, that is Q1, and this will be the second charge, that is Q2. And as I told, the distance between these two charges, it's going to be, of course, center से इसका center, that is R. And right now, the system, it is in free space. Right? Now, इनका बीच में जो force, according to the nature of charge, एक तो attraction हो सकता है, नहीं तो repulsion हो सकता है. तो मैं इसका nature नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि like है या unlike है. तो आपको जो भी equation इधर आएगा, वो magnitude of force का आएगा, right? Force
अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। रिपल्सिव या अट्रैक्टिव कब पता चलेगा? जब मैं Q1 और Q2 प्लस से या माइनस से बताऊंगा। अभी तक तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि दो चार्जेस है, राइट। एंड so when it comes to Coulomb's law, तो Coulomb's law क्या बोलता है? So according to Coulomb's law, the electrostatic force, static force, उसको मैं F ले रहा हूं बच्चा, so I'll take it as F is given there. Fine. So first statement यही है, Coulomb's law ये बोलते हैं जो force है, it is directly proportional to product of magnitude of two charges. So ultimately I will take it as Q1 into Q2. Second ये बोलता है कि it is inversely proportional to square of the distance between them. So F is directly proportional to 1 upon R square या inversely proportional to R square, right? तो इन दोनों को combine करेंगे, तो दोनों को combine किया तो I'll get F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. तो आपको इक्वेशन को इक्वेट करना है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके आना पड़ेगा। देन इक्वेशन बनेगा F is equal to, of course K is constant of proportionality, left is Q1 Q2 upon R square, right? I hope इधर तक तो क्लियर है सबको। Yes. ये Yes. Yes. yes, ये जो कांस्टेंट है where K is constant of proportionality. So it is called constant of proportionality and it depends on two things. ये दो चीज के ऊपर डिपेंड्स रहेगा, right? First one obviously depends on medium. ये मीडियम के ऊपर डिपेंड रहेगा जिधर हम लोग ने चार्ज को प्लेस किया है। ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट में भी बताया है कि डिपेंड्स ऑन मीडियम वेयर द चार्जेस आर प्लेस्ड। एंड सेकंड वन, इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड। व्हेन आई से सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड बोलता हूं, आप सीजीएस सिस्टम यूज करेंगे तो के का वैल्यू अलग आएगा, आप एमके सिस्टम यूज करेंगे तो के का वैल्यू अलग आएगा। मतलब जैसा आप सिस्टम चेंज करेंगे तो के का वैल्यू भी अलग होता है। सो फाइनली डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ we have considered free space, right? So for free space experimentally it is found that ये जो k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम लोग को मिलता है, द वैल्यू k इट कम्स टू बी 1 upon 4 pi epsilon 0। बच्चा दिस इज एप्सिलॉन, ये सिंबल जो है ना एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, राइट? सर वो होता क्या है सर? जैसे के कांस्टेंट होता है वैसे एप्सिलॉन भी कांस्टेंट होता है क्या? हाँ अभी बच्चा इसका बारे में हम लोग आगे बताऊंगा मैं, राइट? सो आई विल डिस्कस अबाउट एप्सिलॉन 0, डोंट वरी, ठीक है? तो मेरा अभी आपको ये मान के चलो कि आपको एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू मिला 1 upon 4 pi epsilon 0। नाउ द टर्म आगे बताऊंगा मैं आपको एप्सिलॉन 0 के बारे में, डोंट वरी। सो वेयर एप्सिलॉन 0 जो है इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, राइट? एंड इसका जो वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 इट कम्स टू बी, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज 8.85 into 10 raised to minus 12। I repeat, it is 8.85 into 10 raised to minus 12 आएगा एंड इसका यूनिट आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चे ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। So it is going to be 8.85 into 10 raised to minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी एप्सिलॉन 0 का वैल्यू ये है, राइट? एंड पाई का वैल्यू तो आपको पता है 3.14 है, तो आप ये एप्सिलॉन 0 का वैल्यू इसमें डालेंगे
पाई का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो k का वैल्यू आपको मिलता है, विल गेट k to be 9 into 10 raised to 9. After substituting, if you calculate, the value comes to be 9 into 10 raised to 9. Of course, epsilon 0 नीचे है तो यूनिट उल्टा होगा. It will become Newton meter square per coulomb square. आपको ये दोनों वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू और k का वैल्यू, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, राइट? बच्चा इधर तक सबको समझ में आया? एंड डोंट वरी, एप्सिलॉन 0 का मतलब मैं इन डिटेल में बताऊंगा क्या होता है. यस सर. परमिटिविटी क्या बोल रहे हो? परमिटिविटी मतलब हाँ, हाँ उसके सर, बारे में बताऊंगा मैं यहाँ परमिटिविटी. पे आगे. परमिटिविटी क्या होता है, आई विल टेल यू. ठीक है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा परमिटिविटी का. सो स्पेस नहीं है, इसके लिए कंप्लीट करो. एक बार कंप्लीट होने के बाद विल डिस्कस अबाउट एप्सिलॉन 0. डोंट वरी, तो फिनिश करो. ओके, नो सर. ये कंप्लीट करो. डोंट वरी, आई विल गिव यू 3-4 मिनट्स सो दैट सब लोग का हो जाएगा आराम Wait, से. sir, wait. बच्चा, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी. सर डन सर. ओके, आई होप अभी तो सबका हुआ होगा. नो सर. Yes. डन सर. ओके, तो मैं रब कर रहा हूं.
Okay, fine. So हम लोग को k का वैल्यू 9 into 10 raised to 9 न्यूमेरिकल्स में लेना है, राइट? बट जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला का बात आता है तो हम लोग k को रिप्लेस करेंगे 1/4 पे एप्सिलॉन 0 से, तो हमारा इक्वेशन बनेगा f का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. सो ये रहेगा फॉर्मूला and this is going to be the expression for force in free space. and आप न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू को 9 into 10 raised to 9 लेंगे, अभी नहीं, ठीक है? अभी सपोज आपका जो चार्जेस फ्री स्पेस में नहीं है, किसी मीडियम में है, राइट? सो देन केस ये होगा फॉर एनी अदर मीडियम. तो याद रखना जब मैं बोलता हूं एनी अदर मीडियम, इसका मतलब फ्री स्पेस नहीं रहेगा. हो सकता है चार्जेस पानी में हो, केरोसिन में हो, राइट? या डिफरेंट मीडियम में रहेगा अदर देन फ्री स्पेस. तभी एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ के आता है हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन. बच्चा फ्री स्पेस में नॉट आता है इधर या 0 आता है, मीडियम है तो खाली एप्सिलॉन आता है, राइट? सो वेयर एप्सिलॉन इज permittivity of given medium. I hope it is very clear. So ये एप्सिलॉन मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, एप्सिलॉन 0 तो फ्री स्पेस करेगा. तो अभी फाइनल इक्वेशन क्या रहेगा मीडियम के लिए? therefore f is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 upon r square. So this will be the equation for force in medium. And ऊपर वाला जो इक्वेशन है it is force in air. Force in air, right? इधर तक सबको समझा? अभी नेक्स्ट इज गोइंग टू बी नोट नंबर 1 है, तो अभी इधर ध्यान देना आपको. अभी नोट नंबर 1 में हम लोग इधर पॉइंट चार्ज का बात करते हैं. किसका बात करते हैं बच्चा? पॉइंट चार्ज. मैंने जब भी कूलम्स लॉ बोला तो आई हैव टॉक्ड, यू नो, I didn't say charge, I told you point charge, right? अभी सवाल ये है पॉइंट चार्ज क्या होता है. सो व्हेन इट कम्स टू पॉइंट चार्ज, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. पॉइंट चार्ज का ये मतलब है, सपोज दो चार्ज है, सो आई गॉट टू चार्ज. ये फर्स्ट चार्ज है, राइट? सो इट इज q1, सो आई विल टेक इट एज चार्ज a एंड इसका चार्ज q1 है. एंड दूसरा चार्ज है, इट्स b एंड इसका चार्ज q2 है. अभी ये जो चार्ज है, इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, आई विल टेक इट एज कैपिटल R, राइट? एंड इनका जो रेडियस है, रेडियस दोनों का, तो मैं ले रहा हूं स्मॉल r, राइट? वेयर कैपिटल R जो है ना बच्चा डिस्टेंस है, एंड r जो है दिस इज डिस्टेंस, एंड स्मॉल r जो है ऑब्वियसली रेडियस है, रेडियस, राइट? सपोज ये जो r का वैल्यू, आई मीन r कैपिटल का एरियल, इफ इट इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू रेडियस, r का वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू रेडियस ऑफ द चार्ज, देन हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस, राइट? तो पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है the distance between the two charges should be very very large compared to their radius. आप radius बोलो या dimension बोलो, it is one and the same. मतलब distance ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चा? दोनों के बीच में force कम रहेगा, कम होगा, और force कम रहेगा तो क्या होगा? बॉडी मूव नहीं होगा. बॉडी मूव हुआ तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं हो बच्चा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हो. तो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए, एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज. आई होप इट इज वेरी क्लियर. यस Yes. यस. तो मैं फिर से बता रहा हूं बच्चा, तो आपको स्टेटमेंट यही लिखना है. द टू चार्जेस आर सेड टू बी पॉइंट चार्जेस if they are separated by a distance which is very very large compared to their radius.
which is very large compared to their radius. लिख सकते हो ये? यस Yes. हाँ, मतलब ये अभी फिर से एक्सप्लेन कर देखो, ऐसा हिंदी में तो ये बता सकते हैं हम लोग, दो चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कब बोलेंगे? जब उनका डिस्टेंस, उनका बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा रहेगा कंपेयर टू उनका रेडियस या डायमेंशन, राइट? तभी क्या होगा, फोर्स वीक रहेगा तो बॉडी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स बॉडी को मूव नहीं करवाएगा, मूव किया तो ऑब्वियसली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं रहेगा, राइट? तो ये पॉइंट नंबर 1 है। और पॉइंट नंबर 2 बच्चे इधर आपको बोलो बोलो सर ये वापस रिपीट हाँ। करो ना। बच्चा अभी दो चार्जेस है, राइट? उसका रेडियस दोनों का स्मॉल आर लिया मैंने, स्मॉल आर इज द रेडियस, आपस में डिस्टेंस कैपिटल आर, डेफिनेशन रिपीट। दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। यस सर डेफिनेशन रिपीट। अच्छा डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन एक काम करता हूं, मैं ही लिख लेता हूं। इफ द टू चार्जेस are said to be point charges if they are separated by a distance which is very large, compared to their radius, very large compared to the radius, their radius बोलो या डायमेंशन बोलो, इट इज वन एंड द सेम। अच्छा अभी तो क्लियर है, अभी लिख सकते हो ना? यस सर। यस ठीक है, अभी नोट नंबर 2, अभी नोट नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, परमिटिविटी का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा परमिटिविटी क्या होता है। सो जब मैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखता हूं, तो आपको एप्सिलॉन 0 का यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन 0 को ऊपर लेके जाओ ये साइड में और F इधर लेके आओ, तो यू विल हैव एप्सिलॉन 0 इज 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको यूनिट तो मिल जाएगा, द एसआई यूनिट विल बी, मैंने पहले से आपको लिखा है, बच्चे इधर Q1 Q2 ऊपर है तो कुलम और कुलम स्क्वायर हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है तो उसका यूनिट नहीं होता है, और फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। Newton meter square. एग्जैक्टली, तो इट इज मीटर स्क्वायर। तो ऐसा आपको डायमेंशन निकालना है, सॉरी एसआई यूनिट निकालना है। अभी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो डायमेंशन 1 एप्सिलॉन 0, ऑफ कोर्स डायमेंशन मतलब ब्रैकेट में लिख दिया, सो इट इज गोइंग टू बी कुलम्ब का स्क्वायर, Q इज इक्वल टू IT है बच्चा, Q इज इक्वल टू IT, राइट? पता है ना आपको Q इज इक्वल टू IT? यस यस सर यस। ये बनेगा, A1 लिखो या I स्क्वायर लिखो चलेगा बच्चा, आप A भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। ये एम्पियर मतलब A भी करंट है और I भी करंट है, तो आप A लिखना चाहते हो तो A लिखो, मैं तो I लिखने वाला हूं, ठीक है? तो Q इज इक्वल टू IT है और कुलम स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अभी फोर्स का जो डायमेंशन है L1 T माइनस 2 होता है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो मीटर स्क्वायर है तो L2 होगा। L2. वेरी गुड। अभी हमारा एक ही काम है, सबको एक ऊपर लेके जाना है, सो दिस M एक ही है तो M -1 -3. वेरी गुड। और ये ऊपर आके T4 होगा, T raised to 4 I raised to 1 I raised to 1 I square. I square। दैट्स इट, ये हो गया डायमेंशन। बच्चा समझा? यस सर। Yes. अभी कोई बताएगा मेरे को सर K का डायमेंशन क्या होगा? K का डोंट यू थिंक इसका उल्टा होता है? M1 yes M1 L3 हाँ बोलो। T -4 I -2। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो कंप्लीट करो बच्चा, देन हम लोग परमिटिविटी का बारे में डिस्कस करेंगे।
Excellent. Very good. बच्चा किसी का तो माइक ऑन है तो उसको ऑफ कर लो। कानद। सर डायमेंशंस डिक्टेट करो ना। डायमेंशंस वाला। सर हाँ सर दिख रहा नहीं है। ओके ओके ठीक है। पर अभी तो आई थिंक आप फाइंड आउट कर सकते हो ना बच्चा। Q इज इक्वल टू आई टी है तो इट इज टी स्क्वायर है तो 2 होगा एंड ये I2 होगा। T2 I2 फोर्स का M1 L1 T रेस टू -2 होता है एंड मीटर स्क्वायर मतलब L2 होगा। सर आप ऊपर लेके जाओ आपको ये मिल जाएगा। I mean, once you know the SI unit, then you should know how to find dimension. सर वो डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, वो लेट एडमिशन के कारण नहीं पता। अच्छा ठीक है। देखो ये जो कुलुम है ना बच्चा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है ना बच्चा, तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है। Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, मतलब ये Yes. करंट है तो I1 लिखा और ये टाइम है तो T1 लिख दिया। अब इसका स्क्वायर है ना, कुलुम का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर मतलब ये बने स्क्वायर है तो सर ये समझा I2 सर। होगा ये T2 होगा। राइट। यस सर। ओके। अभी फोर्स का भी ऐसा करना है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस अपॉन सेकंड स्क्वायर है। तो मास है तो m1, M1 डिस्टेंस है तो L1 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 सेकंड T t का स्क्वायर है तो minus t 2 -2। वैसा करना है। yes मतलब जिसने भी लेट एडमिशन लिया है, सो इफ यू टेक यू नो, आप किसी से आप नोट्स बोरो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एल डी को है, एल डी को रिप्रेजेंट करा है ना। नहीं बच्चे, डिस्टेंस लिखा है मैंने। हाँ डिस्टेंस हाँ को मेजर डिस्टेंस करने के लिए लेंथ। L1 एल एल आपने जो लिखा है। हाँ लेंथ, लेंथ है वो, लेंथ L फॉर हाँ लेंथ। वही पूछ रहा था हाँ सर। राइट राइट। डिस्टेंस लिखो, देन D लिखो, S लिखो, S X लिखो, सब चलेगा। डन सर। done ओके फाइन। Done. आई होप सबका हो गया है। yes यस सर। ठीक है यस सर। अभी चलते हैं आप जो बोल रहे थे परमिटिविटी के ऊपर। फाइन। सो नेक्स्ट इज, इट इज नोट नंबर 3।
दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा ध्यान दो, जब मैं मैग्नेट का बात करता हूं, मैग्नेट हम लोग को पता है इट हैज गॉट टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। अब ये मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो आई विल अज्यूम दैट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपने 10th में डेफिनेटली पढ़ा होगा, और उसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, बाहर से, राइट, एंड अंदर से ऑब्वियसली हम लोग देखा नहीं है, बट वी अज्यूम इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, and that magnetic field is represented by a imaginary line, and that is called magnetic lines of force, right? अभी in the similar manner जब मैं एक चार्ज का बात करूंगा, चार्ज, so if I consider a charge, so obviously चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। Now this electric field it's represented by a imaginary line, and that line it's called electric lines of force। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। इसका बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे कैसा बनता है, बट फॉर टाइम बिंग परमिटिविटी को समझने के लिए आप अज्यूम करो कि एक लाइन चार्ज से बाहर आएगा, और वो लाइन पॉजिटिव चार्ज आता है तो बाहर आता है, नेगेटिव चार्ज आता है तो अंदर जाता है, राइट। इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज देन इट विल कम आउट, इफ इट इज नेगेटिव चार्ज देन वो चार्ज का अंदर जाएगा, ठीक है, ये उसका प्रॉपर्टी है। बट फॉर टाइम बिंग आप अज्यूम कर लेंगे कि चार्ज एक लाइन को, इमेजिनरी लाइन को बाहर फेंकता है या प्रोड्यूस करता है, और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। अभी ये जो लाइंस है आप इसको किधर भी रखो इट विल प्रोड्यूस सेम लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब इसका चार्ज क्यू है, एंड इफ इट इज प्रोड्यूसिंग 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देन दैट विल रिमेन सेम इन ऑल द मीडियम। क्योंकि मीडियम से चार्ज को क्या तकलीफ है, चार्ज तो वही प्रॉपर्टी लेके हर एक मीडियम में जाता है, तो अल्टीमेटली वो सब जगह इफ यू कीप इट एनीवेयर, एनी मीडियम, इट विल प्रोड्यूस 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। अभी आप मैंने क्यू लिया या 2Q लिया तो 200 हो जाएगा, 3Q लिया तो 300 हो जाएगा, राइट। जैसे जैसा चार्ज का वैल्यू बढ़ता है लाइंस ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा। तो मैं अज्यूम किया कि मेरे पास जो चार्ज है इट विल प्रोड्यूस 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो चार्ज को पहले मैं फ्री स्पेस में रखता हूं, फ्री स्पेस में, अच्छा ध्यान से सुनो, आई विल कीप इट इन फ्री स्पेस। सो फ्री स्पेस मतलब ऑब्वियसली एयर है या वैक्यूम है, तो जैसे मैंने चार्ज को रखा, बच्चे कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करेगा, 100। तो 100 को प्रोड्यूस करता है, और ये 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है बाहर भी आता है, एयर से बाहर 100 प्रोड्यूस किया और 100 बाहर आ गया। सर एक बार फिर से रिपीट करिए ना। अच्छा ठीक है बच्चा, ये आप हर एक चार्ज जो है इफ इट इज चार्ज देन वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होगा, एक रीजन जिसमें दूसरा चार्ज आएगा तो एक तो अट्रैक्ट होगा नहीं तो रिपल होगा। इतना समझा बच्चा? बच्चे इतना समझा? एक रीजन है यस जिसमें दूसरा फोर्स को फोर्स लगता है, राइट, दूसरा चार्ज को। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये जो लाइन है इसका हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, राइट। अभी चार्ज क्यू है तो इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है वो फिक्स रहता है, आप इसको किधर भी रखो। अभी चार्ज क्यू है तो मैंने अज्यूम किया कि 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब आप इसको किधर भी रखो तो वो कितना लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा बच्चा, 100। तो उसका प्रॉपर्टी है, राइट। बच्चा इतना समझा? जिसको थोड़ा कंफ्यूजन था इधर तक सो समझा? सर 100 ही प्रोड्यूस करता है वो। बच्चा मैं अज्यूम कर रहा हूँ 100 होगा। ओके बच्चा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 100 कर रहा है, हो सकता है वो 200 भी करता होगा, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज प्रोड्यूसिंग 100। इज इट क्लियर? बच्चा इधर तक समझा? यस सर यस ठीक है, सर। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इसको मैंने एयर में रखा तो 100 प्रोड्यूस किया और एयर से 100 बाहर आ गए,
अभी जैसे मैंने उसको पानी में रखा, आई मीन वाटर में, तो क्या होता है देखो, जैसे मैंने पानी में रखा, दिस इज वाटर नो, तो चार्ज वही है। तो अभी बताओ कितना लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा बच्चा? 100। 100. बट इट इज ऑब्जर्व दैट जैसे वो 100 बाहर आता है, इट विल बिकम 80। ठीक है, कितना बनता है बच्चा? 80। सर कैसे? सुनो सर एक सुनो बार फिर से समझाओ ना। बच्चा, इधर तक तो समझ में आया ना कि वो फ्री स्पेस में 100 प्रोड्यूस हुआ, 100 बाहर आ गया। पानी में जैसे मैंने वो चार्ज को रखा तो 100 प्रोड्यूस किया उसने, बट पानी से कितना बाहर आया बच्चा? 80। सर लेकिन क्यों 80 बाहर है? 20 क्यों हाँ नहीं बच्चा है? सुनो, आप सुनो तो सही, मैं थोड़ी बताया कि ये क्यों हो रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग 100 प्रोड्यूस हो रहा है, 80 बाहर आया है, आपको अज्यूम करना है। यू डोंट आस्क मी ए क्वेश्चन, दिस इज अजम्पशन है, मैं ऐसा हो रहा है, देन मैं बताऊंगा कि क्यों हो रहा है। ओके ओके। ठीक है, अभी मैंने इसको रख दिया पर मरकुरी में, किस में रख दिया बच्चा? Mercury. में। हाँ, तो आप जस्ट सुनो, आपको एंड में समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। तो क्यू चार्ज को रखा, वही चार्ज जो इधर रखा था हर एक जगह, तो कितना लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा बच्चा? 100. 100। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब ये बाहर आता है, इट इज ऑब्जर्व दैट ये बन गया है 60, राइट? तो Yes. इसका मतलब ये है, अभी 100 में से 60 बाहर आ गया, इसका मतलब 40 क्या किया बच्चा? मीडियम ने ऑब्जर्व कर लिया, Absorb. मीडियम Yes. स्टोर कर लिया। अभी कुछ समझा Yes. यस सर। Yes, sir. बच्चा? 80 बाहर आ गया तो 20 किधर गया Absorb. बच्चा? मीडियम ने गायब कर Absorb दिया। एब्जॉर्ब। अभी 100 में से 100 बाहर आएगा तो मतलब कुछ ऑब्जर्व नहीं किया है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। मतलब क्या करता है? मीडियम लाइंस ऑफ फोर्स को ऑब्जर्व करता है, मतलब कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है, राइट? Yes. 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 और वो Yes, कितना स्टोर कर सकता है उसको ही हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चा? परमिटिविटी, राइट? अभी आप बोलेंगे सर परमिटिविटी क्यों टर्म यूज किया है? तो सिंपल बच्चा, देखो 100 में से कितना बाहर आया? 80। 80. हाँ, कितना बाहर नहीं आया? 20। 20. मतलब उसने 80 को परमिशन दिया और 20 को परमिशन नहीं दिया। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. इधर 60 को परमिशन दिया है और 40 40 को नहीं दिया है। नहीं दिया है, राइट? सो अभी कुछ टर्म आ रहा है आपको पता है, परमिशन का बदले में उन्होंने टर्म डाल दिया परमिटिविटी, Yes. राइट? Yes. तो मैं Yes. इसको डिफाइन करूंगा तो ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूं, 80-60 got the permission to pass through the medium. 80 and 60 they got permission to pass through the medium, right? And सर कोई 40 लिमिट and नहीं रहता है? डिपेंड करता है बच्चा वो मीडियम के ऊपर। मैं ये नहीं बोल सकता कि कितना होगा, इट डिपेंड होता है, हर एक मीडियम का अलग अलग वैल्यू है। और ऑफ कोर्स हम लोग इतना याद तो नहीं रख सकते। नहीं सर, उसका लिमिट नहीं रहता है क्या? लिमिट इन द सेंस मतलब वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है? मैक्सिमम हाँ। कितना एडजस्ट कर सकते हैं वो? मैक्सिमम। बच्चा अभी मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? एक मीडियम हो सकता है, एक को भी पास नहीं करता है, ये भी पॉसिबल है ना? यस। Yes. हाँ, तो एक को भी जो पास नहीं करने के लिए आपको सामने मेटल रखना पड़ेगा, मेटल में एक भी पास नहीं होता है। यस सर। वो आगे हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट अभी आपको इतना मान के चलो कि जैसे मैं चार्ज को लगता हूं तो वो लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करेगा, और उसमें से कुछ लाइंस ऑफ फोर्स को मीडियम क्या करता है बच्चा? स्टोर कर देता है। क्या करता है? स्टोर। और वो कितना स्टोर कर सकता है उसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परमिटिविटी। इज इट क्लियर नाउ? इतना समझा? Yes. मतलब Yes. बच्चा आप एक्चुअली देखेंगे तो मीडियम क्या करता है मालूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता है या वीक करता है। अभी 100 में से 100 बाहर आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता था, अब इधर 80 बाहर आ रहा है तो वीक हो रहा है, 60 बाहर आ रहा है तो वीक हो रहा है। मतलब मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है बच्चा? चेंज कर रहा है, वीक कर रहा है। आई मीन वी कैन से मीडियम एज द कैपेसिटी टू मॉडिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन मॉडिफाई कर सकता है? मीडियम। मीडियम। ठीक है, सर अभी तो आई होप जितना ज्यादा डेंसर मीडियम, सर क्या बोल रहे हो? जितना डेंसर मीडियम उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, तो क्योंकि जितना हर ज्यादा एक डेंसर मीडियम होगा। हाँ बच्चा, लाइट का बात नहीं हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा सुनो, लाइट का बात नहीं हो रहा है, ये हर एक मीडियम का अंदर जो स्ट्रक्चर रहता है मॉलिक्यूल का, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। राइट, इसमें आगे जाके कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल, तभी मैं बता सकता हूं कि कौन अलाउ करेगा कौन नहीं करेगा। राइट, यस यस। ठीक है। सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन हियर, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। द ability of medium to store electric energy, स्टोर एनर्जी लिखता हूं, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called permittivity of medium. कंक्लूजन यही है, मीडियम modifies electric field the strength of the electric field, that will be a better word. So strength of electric field. बच्चे आई होप इधर तक तो सबको समझ में आया डेफिनेशन। The Yes. ability of medium to store energy in electric field is called permittivity of medium. That's it. तो ये कंप्लीट कर लो। Done, sir. Okay, डन सर। good. डन सर। Fine. ठीक है, so I hope it is done. Yes. यस सर। बच्चा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा है? Yes, sir. यस Yes. गुड। अभी क्या होता है, आप अभी लॉजिकली आपको मेरे को आपको बताना है, तो हम लोग को क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एयर का 1 कंसिडर करते हैं, एंड दूसरा मीडियम का हम लोग को पता नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मीडियम को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एयर का साथ कंपेयर करते हैं। जब आप एयर का साथ कंपेयर करते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस एब्सोल्यूट सुना है ना आपने, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Yes. जिधर Yes. आपको यस सर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता है, Glass to air, air to Air का हाँ, one. देन एयर का 1 है और ग्लास का 1.5 आता है, देन वाटर का 1.33 आता है, 3. देन डायमंड का 2.4 आता है। राइट, अभी इधर हम लोग क्या करने वाले, देखो इधर हम लोग को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पता है, दैट इज 8.85 into 10⁻12, एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं पता है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को परमिटिविटी ऑफ एयर से कंपेयर करेंगे, जैसा हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में करते थे। राइट, so I repeat, the permittivity of medium we don't know, and permittivity of air हम लोग को मिल गया 8.85 into 10⁻12 है। तो हम लोग क्या करेंगे,
दूसरा मीडियम को हम लोग एयर का साथ कंपेयर करेंगे, राइट? तो अभी वी गेट ए टर्म कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी। उसको अलग वर्ड में बोल सकते हैं, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर वो क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, बताओ ना। हाँ, उसको बच्चा अभी इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, ठीक है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसको के लिखेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग लिख सकते हैं जैसा मैंने बताया, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट? इसको हम लोग एप्सिलॉन आर लिखेंगे, आर फॉर रिलेटिव। अभी रिलेटिव परमिटिविटी नाम से पता चलता है कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम को परमिटिविटी ऑफ एयर से या फ्री स्पेस से रिलेट करता है। क्या करता है बच्चा? रिलेट। बच्चा इतना समझ में आया? मैं टर्म क्या लिखा देखा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा और रिलेटिव परमिटिविटी सर लिखा। इसका सिंबल क्या है? सर सिंबल क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? एप्सिलॉन आर है, नहीं तो के है। एक तो एप्सिलॉन सफिक्स आर, नहीं तो के, ठीक है? के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एंड रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर लिखते हैं, बट अल्टीमेटली दोनों सेम है, ठीक है? यस ठीक है। अभी देखो, जैसा मैंने बोला कि दोनों को रिलेट करता है, तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसा डिफाइन करते हैं? द रेशियो ऑफ permittivity of given medium to permittivity of free space is called dielectric constant, right? And by definition obviously मैं लिख सकता हूं K is equal to epsilon upon epsilon 0. K is epsilon upon epsilon 0, बराबर है ना बच्चा? डेफिनेशन के हिसाब से। यस तो मेरे को बताओ ये K का SI यूनिट क्या रहेगा? SI यूनिट नो ऐसा यूनिटलेस वेरी गुड बच्चा, यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी। नीचे भी मैंने permittivity। बोला रिफ्रैक्ट। बच्चा मेरे को बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है? नो नो यूनिट और ये भी वैसे ही है बच्चा, इट इज कंपैरिजन फॉर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर करता है, V1 अपॉन V2 करता है ना? तो ये परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी है, तो ऊपर का नीचे का यूनिट कैंसिल होके आई कैन राइट देयर इज नो यूनिट। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा? नो Dimensionless. नो डायमेंशन मतलब इसको ना यूनिट है, नो डायमेंशन, इट इज ए प्योर नंबर। एंड ये नंबर किसको ऊपर डिपेंड रहेगा बच्चा? मीडियम को ऊपर डिपेंड रहेगा। इसको ऐसा यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब एक नंबर होगा और ये नंबर मीडियम का ऊपर डिपेंड रहेगा। याद रखना, दिस नंबर डिपेंड्स ऑन व्हाट? मीडियम, ठीक है? Medium. अभी मैंने एप्सिलॉन 0 को उस साइड में लिया, तो वी विल गेट एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू के एप्सिलॉन 0। तो इसमें पता चलता है ये जो एप्सिलॉन के टाइम्स एप्सिलॉन 0 है, इसका मतलब के इन दोनों को रिलेट करता है, राइट? सो हियर के रिलेट्स एप्सिलॉन with epsilon 0, so it is called relative permittivity, and obviously उसका सिंबल होता है जैसा मैंने बताया एप्सिलॉन आर है। बच्चा समझा? Yes, sir. यस अभी हम सर इक्वेशन निकालने। हाँ बोलो।
सर फिर से समझाओ ना एक बार। बच्चे ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये परमिटिविटी, अभी मैंने क्या बोला आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमको पता है उसका वैल्यू, एंड परमिटिविटी ऑफ दूसरा मीडियम नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एयर का कंपैरिजन में दूसरे का परमिटिव कितना है वो देखेंगे, मतलब 1 टाइम्स ज्यादा, k टाइम्स मतलब 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना टाइम्स ज्यादा, एंड वो कंपैरिजन करने वाला जो टर्म है उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। कुछ समझा आपको? यस। मेरे को ये बताओ, सपोज एक स्केल का मिनिमम जो लेंथ है, मिनिमम मतलब स्केल में जो रीडिंग है ना वो 1 मीटर है, ठीक है। अभी आप कभी भी किसी मतलब एक बिल्डिंग का मेजरमेंट करते हो तो आपको बिल्डिंग का लेंथ 60 मीटर आया, तो आप क्या एक्चुअली आपने क्या किया मालूम है, आपने 1 मीटर का साथ बिल्डिंग का जो हाइट है उसको कंपेयर किया तो आपको 60 मिल गया, और वो 60 के जैसा है। बच्चा समझा मैं क्या बोल रहा हूं? यस। यस। I hope it is very clear to you. बच्चा एप्सिलॉन 0 हमारा रेफरेंस है, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट, जैसे 1 मीटर है, तो अभी हम लोग दूसरे को इसका साथ कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ना 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 100 टाइम्स, वो जो कंपेयर करने वाला टर्म को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो कंपेयर का और एक टर्म आता है रिलेट करना, तो इसके लिए उसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. Yes. Yes. Okay, okay, fine. Now, force in air is given by, of course, Coulomb's law को यूज करके मैं लिख रहा हूं, तो Fa it is force in air which is 1/4 pi epsilon naught, क्योंकि air के लिए epsilon naught आएगा, Q1 Q2 upon r square, तो epsilon 0 इधर Fa इधर, so you'll have epsilon 0 will be 1/4 pi Fa Q1 Q2 upon r square, so we'll take this to be equation number 1. Force in medium या given medium is given by, अभी कोई बता सकता है क्या इक्वेशन लिख सकता हूं मैं? Fm लिख सकता हूं क्योंकि मीडियम है, that is 1/4 pi epsilon. Epsilon. Very good. Q1 Q2 Q2 upon r square. अभी आपको क्या चाहिए बच्चा? एप्सिलॉन चाहिए, तो इसको इंटरचेंज करेंगे, तो एप्सिलॉन इज 1/4 pi Fm Q1 Q2 upon r square. This is equation number 2. बराबर है? Yes. अभी आप Yes. लोग, if I take this to be equation number 1, this to be 2, this to be 3, can I substitute 2 and 3 in 1? Yes. So substituting equation number 2 and equation number 3 in 1, in equation number 1, बचा मेरे को बताओ k का वैल्यू क्या आएगा, फाइनल टर्म बताओ क्या आएगा? Fm upon Fa. हाँ, मतलब इसको आप पहला लिखेंगे, एप्सिलॉन की तरह बचे, इसको पहला लिखेंगे तो 1/Fm बचेगा, क्योंकि अपॉन 1/Fa आएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली Fa अपॉन Fm आएगा, राइट? तो Yes. इसका मतलब मैं k का वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख सकता हूँ, नहीं तो Fa अपॉन Fm लिख सकता हूँ। तो अभी तो पता ही चलता रहेगा कि इसको यूनिट नहीं होगा, Yes. क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स है तो यूनिट डेफिनेटली नहीं रहेगा, बराबर है? तो अभी क्या होगा, इसका और एक डेफिनेशन बनेगा, ड्राई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। आई रिपीट, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन ए गिवन मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन गिवन मीडियम। इतना तो लिख सकते हो ना बच्चा? Yes. एंड उसका आगे ये लिखना है आपको, इफ द टू चार्जेस, ये Q1 एंड Q2 दोनों जगह सेम होना चाहिए, इधर Q1 एंड Q2 है, इधर भी Q1 है, तभी जाके इधर इक्वेशन में कैंसिल होता है, और R भी कैंसिल होना चाहिए। तो आपको ये लिखना है, इफ टू चार्जेस and
distance between them is kept constant. Between them is kept constant. तभी जाके आपको इक्वेशन आता है, तो आपको ये एंडिंग में लिखना है। तो मैं स्टेटमेंट बच्चे फिर से रिपीट कर रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। याद रखना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू force between two charges in given medium. If two charges and the distance between them is kept constant. ये लास्ट में लिखना है बच्चे, इतना लिख सकते हो? Yes. कुछ कंफ्यूजन है अभी? Any confusion? Yeah, it is clear. सर वो हेडिंग में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद अपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? के लिखा है? के लिखा है? के लिखा है? के। ओके सर। है ना? हाँ ठीक है, कंप्लीट करो। ये कंप्लीट हो गया तो देन वी विल स्टॉप। डन सर। ओके ठीक है। अब बच्चे समझ में आया जो भी डन बोल रहे हो?